अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको कराची के खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड नया नाज़ाबाद जिमखाना से, जहां से अब से कुछ ही देर बाद खेला जा रहा है SPL Juniors exhibition match between Celebrities 11 and SPL 11. And as we just saw just before a few minutes ago, it was the Celebrities 11 skipper Saud Kazmi who won the toss and he decided to bowl first. So what a night it's going to turn out to be. Not only we have going to be having a cricket match, and these are the two men in charge of this exhibition match tonight. पहली गेंद डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा देखना होगा। जी हाँ, वाइड के साथ इनिंग का आगाज किया बुलंद ने, तो एक इजाफी रन हासिल हुआ यहाँ पे। तो जितनी यहाँ पे तारीफ की जाए, इस क्रिकेट एनवायरनमेंट की तारीफ की जाए, कलरफुल एनवायरनमेंट है। इस मरतबा कट की अगले ओवर की पहली गेंद, किसी फील्डर के पास मौका नहीं और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। या बिल्कुल शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट अब्बास जाफरी की जानिब से। ऑस्टम के काफी बाहर गेंद इसको पिछले कदम पे जाके कट किया। इस दौरान उड़ता हुआ स्ट्रो, गेंद है हवा में और जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और यही सब देखने तमाशा यहाँ मौजूद भी है। इनिंग्स का पहला छक्का लगाया खालिद लतीफ ने और शानदार अंदाज से ओवर का भी इख्तिताम किया। इस दौरान ड्राइव करने गया, गेंद हवा में लेकिन कैच ना मुकम्मल कर सके। शानदार एफर्ट सऊद काज़मी की, रन जरूर बचा लिए लेकिन कैच ना पकड़ सके यहाँ पे। इस मरतबा इस गेंद को खालिद लतीफ खेलने में कामयाब हुए, 4 रन हासिल कर जाएंगे। बॉलिंग में तब्दीली की गई थी, जुनैद खान को लाया गया और लेग साइड पे गिरी हुई गेंद इसको पुल करने में कामयाब है खालिद लतीफ और फाइनल लेग के बाएं जाने से चौका लगाने में कामयाब है। इस दौरान पुल किया खालिद लतीफ ने और शायद दूसरा छक्का भी लगाने में कामयाब हुए। अब तक 2 एग्रेसिव स्ट्रोक्स अटेम्प्ट किए खालिद लतीफ ने और दोनों ही बार बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकने में कामयाब हुए। तकरीबन इसी तरह की गेंद को पहली गेंद को चौका लगाने में कामयाब होते, लेकिन इस तरफ ऑस्टम के बाहर गेंद थी तो जगह मिली और नो हाफ मेजर्स, गेंद को नीचे ना रखा लेकिन मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया यहाँ पे खालिद लतीफ ने। जो उनका एक अजूबा कारनामा कहा जाता है, तो ये इनके खानदान का एक बड़ा खासा रहा है। शानदार कारनामा अंजाम दिया खालिद लतीफ ने। ऑस्टम के काफी बाहर गेंद थी लेकिन इसको ड्राइव किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकालने में कामयाब हुए। एक और चौका इनके खाते में लिखा जाएगा। Last evening of 2024, I think it's the best way to say goodbye 2024. We're celebrating this SPL exhibition match. To be honest, I'm so happy. Fawad Alam starting off with a wide down the leg side, and this might travel all the way for 4 as well. So 5 extra runs will be gifted to SPL 11. So I was talking to him that you have shifted to USA. Oh, knocks him over. That's a brilliant delivery from Fawad. Didn't get a great deal of turn. The ball just holding its line a bit and hitting the top of off. A little bit of spin. Oh no, that was a straighter one. An armor delivery. It's not easy even for the batters to tackle. SPL 11 with that dismissal have now lost their first wicket and now they are at 52 for 1. That's a big combination between Khalid Lateef and Fawad Alam, and so far it's Khalid Lateef who is winning the battle. Another big shot towards deep mid wicket, and it's the 3rd time he has cleared the fence. He looks in seriously good touch tonight, Khalid Lateef. 36 of just 20 deliveries, and you can see 3 maximums have been hit already. Khalid Lateef, what a sensational player he was. And look at this shot. I watched him recently in Karachi Premier League as well. He was absolutely brilliant with the bat. Lifts that one up. Is that going to go all the way? Yes, it does. No chance for the fielder down there at long on. He was just a mere spectator because that ball just kept going and going over his head. He's a very generous man, Saud Kazmi. Coming down the track, he's going to be stumped. Brilliant effort. Raja Mateen was looking to use his speed. The bowler did the right thing by keeping it outside the off stump so that he can keep it away from the hitting zone of the right-hander. And no mistake done by the wicketkeeper behind the stumps. Dislodging the bail just at the right time, making sure that Raja Mateen will be walking back to the dugout. 8 overs have now been done and dusted. SPL 11 are 76 for 2. This might be another wicket. I think it is. Although it was a full toss, he came down the wicket.
It got to the wicketkeeper at an awkward height, but he still managed to get at that one and just took the bails off in time, taking wickets in clusters. Getting on the back foot and straight away getting off the mark with a single towards long gone. So the boundaries have clearly dried up since the departure of Khalil Latif, and I think that is the reason why Celebrities 11 might think that they can restrict them to a decent total. Down the wicket he comes. That might be the third batter losing his wicket because of stumping. Asim just flying the ball a bit. Roshan using his feet, not getting to the line of the ball. It was slightly wider outside the off stump too. And the wicket-keeper, well, what a night he's having. 3 batters dismissed. 4 wickets have now gone down for SPL. Back then, when the likes of Inzamam, it became even difficult for Misbah ul Haq to make a part of his side. This time it was nicely struck by Hassan Raza. He'll get his first boundary. But in those era, to make a debut among star players, I think it was a brilliant effort from Hassan Raza. And she would have enjoyed this boundary as well. Goes for another big shot. It's up in the air and it's just going to land over the boundary ropes. I'll tell you what, Naveed Bulland tried his level best, covered such a big part of the ground towards his right, but he still couldn't pull the ball back inside the boundary ropes, get anywhere near to this. Goes for another big shot, chance for the fielder, taken by Junaid. And you can see that it ball might have struck him really hard in his hands because he was absolutely, pumped up. But what a brilliant effort, that too of the last ball of the innings. Hassan Raza definitely wasn't expecting Junaid Khan to take that one, but he judged that one to perfection, kept his eyes on the ball to the last moment. It was slided up a bit. And tell you what, he didn't really time it well enough, but really good anticipation there by Junaid Khan. That's how the professionals do it. So 96 is what they have managed in their 10 overs, SPL 11. पहली गेंद डाउन द लेग साइड, लेकिन जावेद खदीर ने क्या जबरदस्त तरीके से इसको रोका है और इस बात का ऐलान किया है कि मैं भी अभी जवान हूं. फुल टॉस गेंद, इसको ऑन साइड पर खेले कलाइयों की मदद से और बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, एफर्टलेस स्ट्रोक प्लेड बाय फवाद आलम टुवर्ड्स द डीप स्क्वायर लेग. ये फुल टॉस डिलीवरी, रिस्ट वर्क देखिए, स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब 4 रन हासिल किए. अच्छी गेंद पड़ने के बाद गेंद बड़ी तेजी से अंदर की जानिब आई. ना सिर्फ बैट्समैन बल्कि जावेद कदीर भी इस गेंद को नहीं समझ सके. लेकिन स्पॉन्सर्स की मौजूदगी बड़ी जरूरी है तमाम तर प्लेटफॉर्म को मुहैया करने के लिए. और इस मरतबा मिस फील्डिंग हुई और इनाम बड़े अनलकी रहे कि इनको फील्डिंग साइड से कोई इनाम नहीं मिल रहा है, इनको सपोर्ट नहीं मिल रही. गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. यहां पर ये 4 रन होंगे. ये खूबसूरत कवर ड्राइव फवाद आलम का, शायान की एक फ्लाइटी डिलीवरी और फील्डर ने कोशिश तो जरूर की. इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया है और कोई भी इस शॉट को नहीं रोक पाएगा. तो ये 4 रन ऊंचा खेले हैं इस दफा सलमान और ये गेंद भी बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए. एक अच्छा शॉट, मैं बात कर रहा था कामरान खान टिसोरी बहुत एक्टिव नज़र आते हैं जहां नौजवानों को सपोर्ट करने की बात हो, मौके देने की बात हो. अच्छा स्ट्रोक था इस मौके पे. सलमान सईद अपने बाजू को खोलते हुए स्ट्रोक खेला और बाउंड्री हासिल की. इस दफा जगह बनाई और इस दफा इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब.
मजीद 4 रन्स, तो बैक टू बैक बाउंड्रीज। लगता यह है कि सेलिब्रिटीज 11 इस मैच को जल्द खत्म करना चाहते हैं। जहां पे ये मैच जारी है वहीं ग्राउंड में इस वक्त बरकत और उज़मी मौजूद हैं। इस वक्त बनिस्बतन नीची गेंद रही और सलमान सईद ने इसको कवर्स पे खेला और कोई चूंकि फील्डर वहां मौजूद नहीं, इसने बड़ी आसानी के साथ एफर्टलेस स्ट्रोक का 4 रन हासिल किया। एक दफा फिर इसको गैप में खेल दिया और सलमान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस ओवर में 4 चौके लगा दिए। तो अब ये 13 की औसत से 52 रन हो चुके हैं। ये आरिफ मलिक साहब, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, मिनिस्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध। नासिर हुसैन शाह साहब स्पोर्ट्स लविंग पर्सनैलिटी हैं और इस मरतबा फुटबॉलर के अंदाज में गेंद को रोकने की कोशिश की है और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी पावर एंड डेवलपमेंट, आरिफ मलिक साहब के साथ मौजूद हैं, दीगर रुफ़ाए कार के साथ मौजूद हैं। फुल टॉस बॉल और इस गेंद को उठा के खेले, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अजीजुर रहमान का सिग्नल देखना होगा। 6 रन। एक शो मैदान में जारी है और एक शो बाउंड्री लाइन के बाहर जारी है। जहां एक तरफ कॉमेडी के छक्के वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के छक्के। रन्स की बरसात, एक और उठता हुआ स्ट्रोक सलमान सईद का, फलक बहुत छक्का सलमान सईद की जानिब से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और इंतहाई खुशकिस्मत रही है ये दोनों खवातीन कि गेंद इनके सर के ऊपर से ट्रैवल कर गई, वरना इंजरी भी हो सकती थी। जहाँ क्राउड को हमेशा मुहतात रहना चाहिए। जब भी आप क्रिकेट मैच देखने के लिए आए हैं, क्राउड में हैं, किसी भी वक्त गेंद आपकी तरफ आ सकती है। इस मरतबा लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, बड़े आसानी के साथ मैनेज किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए। घर का भेदी लंका ढाए, ये अली भाई जो है वो छाए हुए हैं। शॉर्ट बॉल और काफी जूसी इन्विटेशन था, खुशदिली के साथ कबूल किया, 4 रन हासिल किए। इस दफा फवाद आलम ने जोरदार तरीके से इसको हिट किया है और 4 रन। और इसके साथ ही हमारी बात सुन ली फवाद आलम और बाहर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो बचा था वो लुटाने के लिए आए, तो बचा ही गया है। जो बाहर फवाद आलम बाहर जा रहे हैं, सिर्फ 7 रन दरकार है और फवाद बाहर जा रहे हैं। और आसिफ, यहाँ पे जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, यहाँ पे एक 5 स्टार होटल भी इसके अक़ब में बन रहा है। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको उकसा रहा हूँ। जब भी पाकिस्तान के अंदर यूथ के हवाले से बात होती है तो हमारे चेयरमैन हाजी रफ़ीक परदेसी साहब का हमेशा यही है कि वो आगे बढ़ के आएँ और यूथ को सपोर्ट करें। और हमारे सीईओ हसनैन परदेसी साहब भी आपको पता है कि बहुत ही एनर्जेटिक हैं और वो भी यही हेल्दी स्पोर्ट्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से SPL और इससे पहले KPL और ये तमाम जो चीज़ें आगे लेके वो बढ़ रहे हैं और मैंने माशाल्लाह से ये देख रहा हूँ कि SPL कतर में होने जा रही है, तो ये तो आपकी SPL की टीम को मैं क्रेडिट दूंगा कि आप बहुत कम टाइम में आपने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और हम इंशाल्लाह इसमें आपके साथ रहेंगे। Thank you so much, Imran bhai. The match is over. That was Imran bhai with us. The match is over. Over to the commentary box once again. जी हाँ, तो सेलिब्रिटीज 11 ने ये मैच 10 विकेट से जीत लिया है और ये इस तरह से मैच समरी थी। 97 for 5 SPL 11, उसमें खालिद ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 45 बनाए। आसिम ने 2 विकेट्स हासिल की, सलमान ने उसका ज़बरदस्त जवाब दिया। जिस तरह अली सलमान भाई कह रहे थे कि ये सईद बनकर आए, सलमान सईद एक नवीद सईद बनकर आए, 43 रन किया। और SPL 11 ये मैच जो है वो हार गई 10 विकेट से। विनर ट्रॉफी के लिए द वन एंड ओनली सऊद भाई आगे आ जाइए और आपकी तालियां बताएंगी कि आपने इस क्रिकेट को कितना एंजॉय किया। सैयद नासिर हुसैन शाह प्रेजेंट करेंगे। सैयद नासिर हुसैन शाह विनिंग ट्रॉफी।
चलते जा